بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ میرے بھائی و عزیز و پیارے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دنیا میں سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر مسجد میں آنے کے لیے توفیق عطا فرمایا، اسی لیے بھائی دل سے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها، اس دنیا میں سب سے بہترین جگہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک میں بھائی جان مسجد ہے، اور سب سے برا جگہ کون سا ہے بھائی جان؟ بازار ہے، لیکن بازار تو کیا جانا ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اکثر صحابہ جاتے تھے آدمی لوگ کو سلام کرنے کے لیے، کیونکہ بازار میں آدمی کیا ہوتا ہے بھائی جان؟ زیادہ ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ وغیرہ صحابی جا کر صرف کس کے لیے بھائی جان؟ سلام دینے کے لیے جاتا تھا، ضرورت نہیں تھا لیکن جا کر کیا کرتا تھا بھائی جان؟ سلام دیتا تھا۔ تو میرے بھائی عزیزو، آج جو خطبہ کا مختصر بات ہے نفل عبادت کے بارے میں، تو تھوڑا سا مختصر بات یہ کرتا ہوں بھائی جان، جو بیت المقدس ہے، اس دنیا میں سب سے پہلا مسجد کون سا ہے بھائی جان؟ بیت اللہ ہے، جس کو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے بنایا ہے، اس کے بعد میں آدم علیہ السلام تعمیر کیا، ابراہیم علیہ السلام، سب سے مسجد پہلا کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ اس کے بعد میں دنیا میں اللہ رسول کہا رہا ہے دوسرا مسجد ہے بیت المقدس۔ کون سا مسجد ہے بھائی جان؟ بیت المقدس، جو کدھر میں ہے بھائی جان؟ فلسطین میں ہے۔ تو بیت المقدس اس دنیا میں دوسرا مسجد ہے۔ پہلا مسجد کون سا ہے بھائی جان؟ بیت اللہ ہے، اور دوسرا مسجد کون سا ہے؟ بیت المقدس ہے۔ اس لیے تمام مسلمان کس کو محبت کرتا ہے بھائی جان؟ بیت المقدس، فلسطین کو کیا کرتا ہے بھائی جان؟ محبت کرتا ہے۔ اللہ رسول کو پوچھا گیا رسول اللہ سب سے پہلا مسجد کون سا ہے؟ بولتا ہے بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہا رہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا مسجد بیت اللہ ہے، اس کے بعد میں کون سا ہے بھائی جان؟ بیت المقدس۔ تو اللہ رسول کو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا دن کا ڈیفرنس ہوا تھا؟ بولتا بیت اللہ کا 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کون سا مسجد بنایا تھا بھائی جان؟ بیت المقدس۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا 2 بیٹا تھا، ایک تھا اسحاق علیہ السلام اور دوسرا تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ کو آباد کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق علیہ السلام کس کو آباد کیا بھائی جان؟ بیت المقدس، فلسطین کو۔ تو فلسطین بیت المقدس کو کیوں ہم لوگ محبت کرے گا؟ تو اس کا دعا فضل بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا مسجد کون سا ہے بھائی جان؟ بیت اللہ ہے، دوسرا مسجد کون سا ہے؟ بیت المقدس۔ 3 نمبر مسجد سب سے پہلے قبلہ، پہلے کدھر طرف نماز پڑھتا تھا بھائی جان؟ قبلہ کی طرف میں جا کر نماز پڑھتا تھا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نماز پڑھتا تھا تو بیت اللہ کو بھی سامنے لیتا تھا اور بیت المقدس کو بھی کیا رکھتا بھائی جان؟ سامنے لیتا تھا۔ اسی وقت میں مسلمانوں کا قبلہ کدھر میں تھا؟ بیت المقدس۔ پہلا قبلہ، اول قبلہ کون سا ہے بھائی جان؟ بیت المقدس ہے، لیکن اللہ رسول کا دل کس میں تھا بھائی جان؟ بیت اللہ کی طرف میں تھا۔ تو اللہ رسول جب مسجد حرم میں کھڑا ہوتا تھا، ایسا جگہ میں کھڑا ہوتا تھا، بیت اللہ بھی سامنے آتا تھا اور بیت المقدس دونوں کس میں آتا تھا بھائی جان؟ سامنے آتا تھا، لیکن دل کس کی طرف میں ہے بھائی جان؟ بیت اللہ کی طرف میں ہے۔ تو یہ اسی لیے سب سے پہلا کون سا ہے بھائی جان؟ بیت المقدس، اول قبلہ۔ اور دنیا میں 2 نمبر مسجد ہے، ثانی مسجد ہے بیت المقدس۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا بارکنا حولہ، بیت المقدس کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کیا دیا بھائی جان؟ برکت دیا ہے۔ اور کتنا انبیاء اکرام فلسطین میں کیا بھائی جان؟ سویا ہوا ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہا بارکنا حولہ، بیت المقدس کا تیسرا فضیلت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے چاروں طرف میں کیا ڈال دیا بھائی جان؟ برکت ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 4 ہے مکان معراج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے کدھر میں گیا تھا سب سے پہلے بھائی جان؟ بیت المقدس۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں کہتا رہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرایا تھا کس میں بھائی جان؟
बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। इसमें अल्लाह ताला ने सफ़र करा है, इसीलिए उलमा इकराम का मकान मिअराज। अल्लाह रसूल मिअराज का रात में बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस में गया था, उसके बाद में जहन्नम जन्नत आसमान देखा अल्लाह ताला ने। और 5 नंबर फजीलत ये है दुआ मूसा ने दुआ कि अल्लाह मेरे कब्र बैतुल्लाह के आसपास में हो जाए। कौन दुआ किया भाईजान? मूसा अलैहिस्सलाम दुआ किया। किसके पास में भाईजान? अल्लाह के पास में। अल्लाह मेरा कब्र अगर बैतुल्लाह के क्या चारों तरफ में किधर भी हो जाएगा, क्या होगा? बेहतर होगा। और नंबर 4 है फतह बैतुल मुक़द्दस। क़यामत से पहले बैतुल मुक़द्दस किसके हाथ में आएगा भाईजान? ईमान वाला के हाथ में आएगा। अभी भी मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, लेकिन लानतुल यहूद ने अभी भी क्या करके रखा है भाईजान? कब्जा करके रखा है। तो नंबर 6 है फतह बैतुल मुक़द्दस। क़यामत से पहले बैतुल मुक़द्दस किसके हाथ में आएगा भाईजान? मुसलमानों के हाथ में आएगा। नंबर 4 है इरादा मस्जिद। इस दुनिया में 3 मस्जिद है जिसमें आप जियारत के लिए क्या कर सकते हैं भाईजान? सफर कर सकता है। एक है बैतुल्लाह, अर्था मस्जिद नबवी, तीसरा कौन सा है भाईजान? बैतुल मुक़द्दस। याद रखना कितना मस्जिद है भाईजान? 3 मस्जिद है। एक है बैतुल्लाह, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ेगा तो कितना मिलता है भाईजान? 1 में 50। और अल्लाह का घर में नमाज पढ़ेगा तो 1 रकअत में कितना मिलता है भाईजान? 1 लाख। और बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ेगा तो 1 में कितना मिलता है भाईजान? 500 रकअत का सब अल्लाह ताला देता है। तो इसलिए यह है नंबर 7 है। अगर किधर भी ज़ियारत के लिए जाना है तो किस में जाना है? सब है बैतुल्लाह, मस्जिद नबवी, उसके बाद में बैतुल मुक़द्दस। 3 मस्जिद है। नंबर 4 है मग़फ़िरत। ये बैतुल मुक़द्दस किसने बनाया भाईजान? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहा है फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत मा दल्लहुम। जब अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौत का क्या हो गया भाईजान? फैसला हो गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहा है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून सअ व ला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आता है, आगे भी नहीं होता है, पीछे भी नहीं होता, टाइम बराबर क्या होता है भाईजान? आ जाता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का आज़म खान का आपका क्या हो गया? जाने का टाइम हो गया। बोलता है मैं अगर चला जाएगा तो ये जिन्नत लोग ये मस्जिद बैतुल मुक़द्दस क्या नहीं करेगा? मुकम्मल नहीं करेगा। वो लोग क्या करेगा? भाग के चला जाएगा। अभी तो मेरी डर की वजह से क्या कर रहा है? अच्छा से बना रहा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब मालूम हो गया मौत का तो क्या हो गया भाईजान? करीब हो गया है। तो उसने जिन्नत को कहा तुम लोग ऐसा करो, ये कांच से घर बना लो, एक गिलास से क्या बना दो? घर बना दो। मैं इसके अंदर में बैठ के क्या करूंगा? तुम लोग को देखेगा तुम लोग कैसे कर रहा है। तो जिन्नत लोग क्या कर दिया भाईजान? घर बना दिया। देखो भाई उसी जमाना में गिलास से क्या बनाया था भाईजान? जिन्नत ने घर बनाया था। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्किस जब आ रहा है, जब सुलेमान का घर में आ रहा है यानी राजपाशद में जब आ रहा है तो सा पहिया कर्मन के लफ्ज है, ऐसा खूबसूरत करके जिन्नत लोगों ने घर बनाया था। तो घर के अंदर में जा रहा और चोस इसमें क्या है भाईजान? पानी है। हाथ तक क्या नहीं है भाईजान? पानी नहीं है। इतना खूबसूरत करके बनाया है। तो अपने कपड़ा उठा रहा है पाँव से बिल्किस, वो चोसा इसमें क्या है भाईजान? पानी है। हत्ता के सुलेमान खाने क्या नहीं है? पानी नहीं है। वही जमाना में सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए लोग गिलास से घर बना के रखा है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या किया भाईजान? मौत आ गया। तो सुलेमान ने दुआ किया अल्लाह ऐसा करना है, मैं लाठी में खड़ा होकर रखता हूँ, जब तक क्या है घर मुकम्मल नहीं होगा तब तक मेरे को क्या रखना? इसमें हिफाजत रखना। और एक बात याद रखना भाईजान, अंबिया इकराम का लाश क्या नहीं होता भाईजान? कोई कीड़ा भी नहीं खाता है, बिगलता भी नहीं है, बराबर रहता है। अंबिया अल्लाह ताला ने मिट्टी के ऊपर में हराम कर दिया अंबिया इकराम के लाश को क्या करने के लिए भाईजान? वो लोग गिलता भी, कोई कीड़ा भी नहीं पकड़ता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो मौत का फैसला हो गया, इसे लाठी के ऊपर में खड़ा हुआ है। इसमें क्या आ गया भाईजान? अज़राइल अलैहिस्सलाम क्या निकल दिया भाईजान? रूह निकल दिया है। तो जब जिन्नत लोगों ने काम खत्म कर दिया है, लट्ठी के ऊपर में खड़ा हुआ है, खत्म करने के बाद जब आया है बोलने के लिए, जो काम क्या हो गया है? खत्म हो गया। अखर तबय्यनतिल जिन्न अल्लाह कानू। जब जिन्नत लोग आया बोलने के लिए और लाठी का नीचे से क्या खा रही है भाईजान? कीड़ा ने खा लिया है। जब कीड़ा ने खा लिया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या हो गया भैया? गिर गया था। तो जिन्नत लोग कहने लगा है हम लोग तो बेकार में इतना क्या किया था, इतना तकलीफ किया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम पहले क्या हो गया था? मर गया था। वो लोग को मालूम नहीं था। ये था कौन सा मस्जिद है भाईजान? बैतुल मुक़द्दस। और उसने दुआ किया अल्लाह जो शख्स इस मस्जिद में इबादत करेगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 दुआ किया, एक दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं किया। तो अल्लाह रसूल कह रहा है मेरा उम्मीद दिया है अगर कोई शख्स अल्लाह की रजा के लिए जाकर बैतुल मुक़द्दस में इबादत करेगा तो जैसा कि बच्चा माँ की रहम से दुनिया में आता है
اللہ تعالیٰ उसको ऐसे क्या बना देगा भाईजान, मासूम बना देगा। कौन का भाईजान, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसीलिए और एक है अर्दुल हशर, अल्लाह ताला ने क़यामत का मैदान में सबसे पहले आदमियों को किधर में जमा करेगा भाईजान, बैतुल मुक़द्दस में। जो इधर बैतुल मुक़द्दस इधर में कितना सिफत 10, इसमें 10 फाजिल बात है किसका भाईजान, बैतुल मुक़द्दस का। इसलिए तमाम मुसलमान किसको मोहब्बत करता है भाईजान, बैतुल मुक़द्दस। ये ईमान का एक तकाजा है, बैतुल मुक़द्दस को क्या करना भाईजान, मोहब्बत करना है। इसलिए बेहतर होगा, आप तो सब जानता है आज फिलिस्तीन के ऊपर में कितना जुल्म हो रहा है। तो बैतुल मुक़द्दस अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम बनाया है। कौन बनाया भाईजान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया है। बैतुल मुक़द्दस अल्लाह का नज़दीक क्या बेहतरीन मस्जिद है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के रात में किधर में गया था भाईजान, बैतुल मुक़द्दस में गया था। तो बैतुल मुक़द्दस, ये जो बैतुल मुक़द्दस जिस जगह है, इधर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब अक्सर हम देख रहे हैं किधर में था भाईजान, फिलिस्तीन, जॉर्डन और क्या सीरिया के अंदर में। और इधर में मक्का में इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी जमाना में दो मुल्क ताकतवर था, एक है रोम और दूसरा था क्या भाईजान, फारिस। रोमन किसको कहा था, अहले किताब, जो क्रिश्चियन था। तो रोम इताली का रोम नहीं है, कुरान मजीद का रोमन वो लोग का नाम था। तो अरबी में इसको कहा था रोम। कुरान मजीद के एक सूरा का नाम क्या भाईजान, सूरा रूम, एक कुरान मजीद का सूरा है। तो अल्लाह ताला कहा गुलिबत रूम, यानी रूम क्या हो जाएगा भाईजान, एक दिन फतह हो जाएगा रूम। जब ये आयत उतरा तो अबू बकर मुसलमान बहुत खुश हो गया जो मक्का में था। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दिन का दावत दे रहा था, तो जो फारिस था वो लोग था मुश्रिक, यानी आग को पूजा करने वाला था, माजूसी था वो लोग। और जो बैतुल मुक़द्दस में था, जो रोमन था, जो रोम था, वो लोग था अहले किताब, यानी क्रिश्चियन था। क्या था भाईजान, क्रिश्चियन था। तो मुसलमान क्रिश्चियन को क्या करता था भाईजान, मोहब्बत करता था। यानी जब रसूल के ऊपर में जब तक कोई नहीं आया था, अगर कोई शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत से पहले अगर क्रिश्चियन का धर्म पर क्या था भाईजान, वो चलता था, वो की भी क्या ईमान वाला है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद किस में आना पड़ेगा भाईजान, इस्लाम में आना पड़ेगा। तो उसी वक्त में दो कौम थे, एक है पारिस और एक था क्या भाईजान, रोमन। रोम था 3 मुल्क, सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन। इस 3 मुल्क को क्या कहता था भाईजान, रोम कहता था। और इधर में इराक और ईरान को क्या कहता था भाईजान, फारिस कहता था। ये अरबी लफ्ज है। तो रोम कितना मुल्क है भाईजान, 3, याद रखना भाईजान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, 3 मुल्क। इसमें बहुत अम्बिक्रम आया है। और इराक और ईरान ये क्या था भाईजान, फारिस था। तो जो रोम था वो लोग था अहले किताब, यानी किसका, क्रिश्चियन था, ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मत था। और फारिस का वाला था क्या, मुश्रिक, यानी जो आग को पूजा करने वाला था, बूतों को पूजा करने वाला था। याद रखना भाईजान, इस दुनिया में 3 किस्म का शिरक बड़ा बड़ा होता है और अल्लाह ताला शिरक का गुनाह माफ नहीं करता है। लुकमान हकीम अपने बेटा को जो पहला नसीहत किया था, वही क़ाल लुकमानु लिब्निही व हुवा यईज़ुहु, या बुनैया, मेरे बेटा, कलीजा का लड़का, ला तुश्रिक बिल्लाह, किसके शिरक नहीं करो, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करो। इन्ना शिरका ला ज़ुल्मुन, लाम एक ताकीद, जुल्मुन जुल अजीम, और एक ताकीद है, शिरक बहुत बड़ा क्या होता है भाईजान, गुनाह होता है। तो जो इराक और ईरान का था फारिस, वो लोग किसके मुश्रिक था। और जो रोम था वो लोग क्या था भाईजान, क्रिश्चियन था। तो जो मक्का में जब ये आयत उतर दिया अल्लाह ताला ने अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, यानी रूम किसका, अहले किताब का। उसी वक्त में फिलिस्तीन लेकर दोनों में क्या होता था भाईजान, लफड़ा होता चलता था। फारिस और रोम के अंदर में, कितना मुल्क के अंदर भाईजान, 2, रोम और फारिस के अंदर में लफड़ा चलता था। तो उसी वक्त में जो ईरान था, जो फारिस था, जो मुश्रिकीन था, वो लोग का कब्जे में क्या था भाईजान, फिलिस्तीन था, और रोम के अंदर में नहीं था। तो जब अल्लाह ताला आयत उतर दिया जो गुलिबतिर रूम, मुसलमान या रूम क्या हो जाएगा, फतह हो जाएगा, यानी रूम, मस्जिद अक़सा, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, जो बैतुल मुक़द्दस है, वो किसका कब्जा में चला जाएगा भाईजान, रूम के अंदर में चला जाएगा। उसी वक्त में किसका हाथ में था, फारिस का हाथ में था। तो जब ये आयत उतर दिया मुसलमान खुश था। उसी वक्त में मुसलमान किसको मोहब्बत करता था भाईजान, जो अहले किताब था, क्रिश्चियन को मोहब्बत करता था। तो जब ये आयत उतर दिया अल्लाह ताला गुलिबतिर रूम, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगा, देखो जो ये रूम एक दिन मुसलमानों के हाथ में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये फिलिस्तीन किसका कब्जा में आ जाएगा, मुसलमानों का कब्जा में आ जाएगा। अभी किसका कब्जा में है, फारिस का कब्जा में है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु जब ये आयत उतारा तो यह कर रहा है, देखो रूम एक दिन मुसलमानों के हाथ में आ जाएगा। तो एक शख्स उमय्या इब्न खल्फ, उसने शर्त लगाया, तुम ऐसा करो कि अगर रूम जो है ना, जो फिलिस्तीन है, अगर रूम के अंदर में आ जाएगा, अभी किसके हाथ में है भाईजान, फारिस। थोड़ा बात ये है भाईजान,
पहले किसके हाथ में था? जेरूसलम जो था ना, जो फिलिस्तीन का सिटी है, बैतुल मुकद्दस पारस के हाथ में। अभी जब ये आयत उतर दिया जो अल्लाह ताला कह रहा जब बैतुल मुकद्दस किसका कब्जा में आ जाएगा? रोम का कब्जा में आ जाए, क्रिश्चियन का कब्जा में आ जाएगा। तो जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगा देखो ये जो अभी फारस के अंदर में बैतुल मुकद्दस था, ये कुछ दिन के बाद किसके हाथ में आ जाएगा? रोम के हाथ में आ जाएगा। और उसके बाद में किसका कब्जा में आ जाएगा? मुसलमानों का कब्जा में आ जाएगा। तो मैं इब्न खल्फ कहने लगा तुम शर्त लगा मेरे साथ में जो कभी भी ये फारस क्या, क्योंकि मक्का के जो मुशरिकीन था वो भी मुशरिक था, फारस जो वो भी क्या था वजन मुशरिक था, दोनों क्या वजन अकेला भाई है। आप देख रहे हैं ना, दुनिया में कोई हिंदू को मारेगा तो दूसरा हिंदू क्या करता है वजन बात करता है, जाति भाई है। अगर एक मुसलमान को मारता है दूसरा मुसलमान क्या करता है वजन अफसोस करता है क्योंकि मुसलमान है। तो जब मक्का के जो मुशरिकीन थे वो लोग बहुत खुश था, देखो जो बैतुल मुकद्दस किसका कब्जा में है? मुशरिकीन का कब्जा में है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहना देखो अल्लाह ताला ने आयत उतर दिया है जो ये जो बैतुल मुकद्दस है किसका कब्जा में चला जाएगा? रोम का कब्जा में चला जाएगा, इसके बाद में मुसलमानों का कब्जा में आएगा। तो मैं इब्न खल्फ एक कुफार थे मक्का का, वो शर्त लगाया, बोलता ठीक है तुम ऐसा करो 10 ऊँट लगाओ, 10 ऊँट का क्या लगाओ? शर्त लगाओ, अगर ये रोम के हाथ में जाएगा तो मैं तुमको क्या देगा? 10 ऊँट देगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या शर्त में क्या हो गया भाईजान? राजी हो गया है। और जाकर या रसूल अल्लाह मैं तो कहा कितना साल लगेगा? अल्लाह रसूल कहा देखो फी बिद'i सिनीन, अल्लाह ताला बिदउन लफ्ज इस्तेमाल किया, हो सकता है 10 साल के बाद, 9 साल के बाद, 11 साल में किसका कब्जा में आएगा? रोम का कब्जा में आएगा। अल्लाह रसूल कहने लगा जाओ तुम जाकर शर्त और बढ़ा दो। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आकर कहने लगा देखो तुम 100 ऊँट का क्या करो? शर्त लगाओ, अगर मुसलमानों को कब्जा में आएगा तो मैं तुमको कितना देना है? 100 ऊँट देना है। तो उसने राजी हो गया था। बाद में जब अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर किधर में चला गया भाईजान? मदीना में गया था। उसी वक्त में फिर बैतुल मुकद्दस किसका कब्जा में आ गया भाईजान? मुसलमानों रोम का कब्जा में आ गया था। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़माना में किसका कब्जा में आया था? मुसलमानों का हाथों में आ गया था। देखो उमय्या इब्न खल्फ दुनिया से चला गया, मर गया, वो बदर में शहीद, बदर में क्या हो गया? मर गया था। तो उसके बाद में जब शर्तों के मुताबिक अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उसका औलाद के पास गया था, जाकर कहने लगा तुम्हारा बाबा ने ऐसा शर्त किया है, मेरे को कितना देगा? 100 ऊँट देगा अगर रोम का कब्जा में बैतुल मुकद्दस आएगा। अभी तो रोम का कब्जा में बैतुल मुकद्दस क्या हो गया? आ गया है। तो उसी वक्त में कितना ऊँट दे दिया उसका औलाद ने? 100 ऊँट दे दिया किसका? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं अब इसको क्या करूं? तो अल्लाह रसूल कहने लगा तुम इसको क्या कर दो? सदका कर दो। जब तुम शर्त कर रहा तो अब मेरे पास में कोई आयत नहीं उतारा इसके बारे में, अभी तो ये क्या है? हराम है। जुआ खेलना क्या वजन? हराम है, ये तो हम सब समझते हैं। अभी तो ये हराम हो गया है, तुम 100 ऊँट क्या करो? अल्लाह का रास्ते में क्या कर दो? सदका कर दो। उसने क्या कर दिया भाईजान? सदका कर दिया बाद में। तो ये था रूम, अल्लाह ताला कह रहा गुलिबाती रूम, जो रूम किसका कब्जा में आएगा? बैतुल मुकद्दस एक दिन किसके हाथ में आ जाएगा भाईजान? रूम का हाथ में आ जाएगा। और खलीफतुल मुस्लिमीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़माना में किसके हाथ में आया था? मुसलमानों का कब्जा में आया था। इसके बाद में फिर क्रिश्चियन के हाथ में चला गया था। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माना में किसके हाथ में आ गया? फिर भाईजान मुसलमानों का हाथ में आ गया था। अभी भी किसके हाथ में है भाईजान? मुसलमानों का हाथ में है। मैं जो कहना चाहता हूँ भाई वक्त तो मुख्तसर है, बैतुल मुकद्दस हर मुसलमान का क्या भाई? कुल जगह टुकड़ा है। अल्लाह रसूल का अल्लाह ताला ने मेराज के रात में मस्जिद हराम से किधर में लेके गया था भाईजान? बैतुल मुकद्दस। जब अल्लाह रसूल मेराज से वापस आया है और कहने लगा अबू जहल कहने लगा भतीजा तुम तो हर दिन नया नया खबर सुनाता, आज कुछ नया खबर सुनाओ। बोलता मैं तो कल रात में किधर में गया था? मेराज में गया, बैतुल मुकद्दस गया था, उससे 7 आसमान 7 जमीन। तो अबू जहल कहने लगा भतीजा 7 आसमान 7 जमीन छोड़ो, तुम किधर में गया था? बोलता मैं बैतुल्लाह से बैतुल मुकद्दस गया था। बोलते एक रात में चला गया, जाने के लिए 40 दिन, आने के लिए कितना दिन भाई? 40 दिन। तुम एक रात में कैसे आ गया है? तो इसके बाद में तो पूरा मक्का में हल्ला चल गया है। कुछ मुसलमानों के ईमान में क्या हो गया भाई? कमजोरी है। बोलो कहना कैसे हो सकता है ये? तो अल्लाह सुबहान, अल्लाह के लिए सब कुछ क्या है मुमकिन है। तो इसीलिए एक शख्स था मुतिम बिन आदी, उसने कहने लगा भतीजा तुम बताओ बैतुल मुकद्दस का कितना डोर है? देखो भाई हम लोग इधर में किसके लिए आया हूँ भाई? नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ। नमाज के बाद मैं आपको कहा आप बताओ मस्जिद के अंदर में कितना फैन है, कितना लाइट है, आप बता सकते हैं भाईजान? आप तो नहीं कहते, कैसे बता सकता है? तो अल्लाह रसूल परेशान हो गया। मुतिम बिन आदी आकर कहा तुम बताओ भतीजा बैतुल्लाह के अंदर में कितना डोर है, कितना विंडो है, बताओ किधर कौन सा दरवाजा है? तो अल्लाह रसूल कहने लगा, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह कहने, अल्लाह रसूल इतना परेशान हो गया था क्योंकि अल्लाह रसूल नमाज पढ़ा, इमामती कराया बेकराम को, उसके बाद में किधर चला गया भाई? आसमान में चला गया था। अल्लाह रसूल ये तो नहीं देखा कितना लाइट है, कितना विंडो है, कितना डोर है। फिर अल्लाह रसूल के सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐसा बैतुल मुकद्दस को क्या किया भाई? उठा के रखा है।
اللہ سب دیکھ کے بتا رہا اتنا ڈور ہے ادھر میں, اتنا ونڈو ہے, کون بتا رہا بھائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا. اس لیے میرے بھائی عاجز فلسطین ہر مسلمانوں کا کتنا بیکرم کا قبر ہے. ابراہیم علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام دعا کی اللہ سے, اللہ میرا قبر کس کے پاس ہو جائے؟ بیت المقدس کے ساتھ میں آ جائے. تو اس لیے میرے بھائی عاجز, ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتا, کمزور ہے کیا, لیکن کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو دعا کر سکتا ہے کہ اللہ مسلمان بھائی آپ کیا کر حفاظت کرو. بھائی کتنا بچے لوگ مر رہا ہے, تو ہماری بھائی ہے, تو مسلمان ہے. اور اگر کسی کا کوئی موقع ملے کوئی پیسہ مسا دینے کا, اللہ کے لیے دینا ہو سکتا ہے بھائی, یہ آپ کا میرا ایک دن عادت کا کیا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے والا سب کاموں میں توفیق عطا فرمائے.